नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? इंटरव्यू में और इंटरव्यू टेक्नीक में एक जो मेजर प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट्स, वो ये कि दे आर नॉट एबल टू वेरी थॉटफुली एंड वेरी आई कैन से eloquently or convincingly talk about their weaknesses. Now, is that a problem? Yes, it is a problem. What will happen is that you would kind of try to, you know, not open up about this, or try to rotate around a single point like sir my communication is not good. बच्चा अच्छा communication कर रहा है, clear बात कर रहा है, and but कह रहा है कि मेरा communication अच्छा नहीं है। तो कहेगा communication तो ठीक है तुम्हारी, तुम तो अच्छा बोल रहे हो। No, sir, it is good, but it was not good. So it means we have overcome the weakness. Let's move ahead. What is your weakness now? फिर वो कहेगा कि सर मेरी जीके अच्छी नहीं है। अब जीके में भी वो बोलेगा कि ठीक है, जीके अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, और कुछ बताओ। जीके तो ठीक है, जीके तो बिल्ड हो जाएगी आपकी। सर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो अब तो हो गया ना। सर जीके अच्छी नहीं है। What is he trying to do? He is not opening up. Why he is not opening up? Because किसी महामूर्खाधिराज ने उसको समझा दिया है कि अपनी वीकनेसेस मत बताओ। वो देखिए इसके दो परिणाम हो सकते हैं। एक तो ये है कि ही इज टेकिंग इट कि दिस बॉय और गर्ल इज नॉट able to represent, or for some reasons is trying to portray the better side of him or her. He will try, he will pressurize. What is one thing you'd like to change in yourself? What is one thing that bothers you the most? How would you like to see yourself in next 10 days, or 10 years, or next 5 years? What will be the change between this person and he's trying, but you are not opening, you are blocked because किसी महामूर्खाधिराज ने आपको समझा दिया है, या आपने खुद से ही अपना ये एक ओपिनियन बना लिया है कि नहीं बोलने का है। परंतु आप एक सोचिए बात, what is the aim of the interviewer? He is basically trying to get into your insight. How much do you know yourself? The larger question is, do you know yourself? Most of the time, we don't know ourselves. Serious problem. Yes. Why we don't know ourselves? Because we don't want to meet ourselves. हमें अपने आप से मिलना ही नहीं है। हम अपने आप से नहीं मिलना चाहते। क्यों नहीं मिलना चाहते हैं? बिकॉज़ हमें लगता है कि हम मिलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम अपने पास्ट में चले जाएँगे, तो इट वोंट बी गुड। यू सी, नॉट हैविंग एन इनसाइट, इनफैक्ट जो रिकमेंडेशन लाइन होती है कि द कैंडिडेट हैज़ अ गुड इनसाइट and trainability. This is a very important factor, insight, whether this person has an insight, whether he knows his strengths and weaknesses. For example, psych also is making you write your self description. In that self description format also, he talks about certain things in which he wants to know ki what is one thing your parents want to improve, or what is one thing you want to improve, or your friends want to. Basically, again, it is about insight. So a person who has no insight cannot grow. यानी कि आपको पता ही नहीं है अपने बारे में. You don't know yourself. Not having an insight is an issue. It's rather a serious issue from psychological perspective. अपने आप से मुलाकात है ही नहीं. अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह की वीकनेसेस हो सकती हैं. अगर आप ये कहेंगे कि सर मेरे को क्लेप्टोमेनिया है, यानी कि मैं जो है किसी का सामान देखता हूँ तो मेरा मन करता है उठा लूं. अब ये बीमारी है, तो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, इश्यू है, डिसऑर्डर है, ये वीकनेस नहीं है. अब आप कहेंगे सर समटाइम्स व्हेन आई सी थिंग्स गेटिंग रॉन्ग or out of order, or when I see a woman folk being mistreated, or
someone being mistreated or someone being bullied or something like that, I cannot hold myself, I cannot control myself, and I tend to fight with that person, and again it's a psychiatric disorder. आप सच्चाई के साथ खड़े हों, आप युद्ध करें, आप युद्ध करने का मतलब है आप सत्य के साथ खड़े हों, आप उसके लिए ज़रूर फाइट करें, इसको करें जो कन्विक्शन कहते हैं, परंतु आप उत्तेजित अगर हो रहे हैं, यानी कि इफ यू आर गेटिंग ड्रिवन इमोशनली, रोड रेज में क्या होता है? रोड रेज में जो बंदा जो रोड रेज कर रहा है, जैसे कि एक बाइक वाला, अब कार वाले ने मान लीजिए गलती से लेफ्ट से उसको ओवरटेक कर लिया, ये कुछ और कर दिया या हॉन्क कर दिया या some mistake which the car wala has made or bike wala has made, this person is not ready to accept it. He is now driven by his emotion. Trigger हो गया, charge हो गया. Charge होने से अब क्या हुआ कि since he is so charged, so what does he do? He is now being influenced by his emotions. He is justified in his own way to himself. Why did he broke the rule? Who is he to broke the rule? Why did he honk? Why did he touch me? What he is not right understanding is it's a mistake that has happened. Maybe it was a mistake that has happened inadvertently. Maybe it has happened advertently. Maybe he has done it with a purpose. There is a system. You taking the law in your own hand only shows कि आपने जो है इमोशनल ड्रिवन काम किया है. ऐसे तो आप अगर इस दुविधा से इस अंदाज से अगर आप चलेंगे तो आप जो हैं you'll justify murder also. She was not picking up my calls and I was so much in love with her and I did this for her and that for her and all of a sudden she is liking someone else and I want to murder her. ये सब weaknesses जो हैं they are an indication of your irrationality, lack of reasoning ability, emotionally driven personality, irreparable weakness नहीं है. कई लोग कई वीकनेसेस में बोलते हैं कि सर आई एम अ ब्लंट पर्सन, आई एम नहीं, दे से कि आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन. अगेन अनपढ़ जैसी बातें हैं. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेट फॉरवर्ड? स्ट्रेट फॉरवर्ड एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो आप अपने ब्लंटनेस को पहना रहे हैं. एक चोगा पहना रहे हैं आप. स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है आप बदतमीज हैं. बट आप उसका नाम दे रहे हैं कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं. तो इंटरव्यूअर बेवकूफ नहीं है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कहेंगे, सोचेगा ये बंदा बड़ा सही सत्य के साथ. कोई सत्य के साथ नहीं है. आप चोगा पहन रहे हैं. बदतमीजी को अपने मतलब कहते हैं ना, साइकोलॉजी में एक टर्म है, सोशल अडेप्टेबिलिटी में आता है कि हैंडलिंग इमोशंस ऑफ अदर पर्सन. आप स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब ही यही है कि यू आर नॉट एबल टू हैंडल द इमोशन ऑफ अदर पीपल और यू डोंट केयर. नहीं, मैं तो सही बात बोलता हूँ, मेरे को तो सही बात बोलना, सही बात बोलिए, बट सही बात को बोलने का एक नजरिया, एक अंदाज होता है. अब आप सही बात तो बोल रहे हैं परंतु यू आर नॉट एबल टू हैंडल द इमोशन ऑफ द अदर पर्सन. सो यू आर uncouth, illiterate, good for nothing person. Are you getting my point? If you are getting my point, then now you can work upon your weaknesses. What can be your weaknesses? For example, you say, sir, sometimes I'm not able to, organize myself well. And I wish to organize myself well. That can be a weakness. Possible. We all get haphazard. ये भी करना है, ये भी करना है, तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ चीजें मिस हो जा रही हैं. So organizing, yes, can be a weakness. But then it can't be a weakness if there is no work in it. So he will have to explain, like how. So sir, I do this and do that, and in that I get confused. That reasonable understanding and explanation. Another weakness can be, sir, I tend to postpone things. Possible. Procrastination.
tend to postpone what kind of things? Let's say कि I have to fill up my form by 18th, I wait till 17th possibly कई लोग करते हैं, मैं खुद करता हूँ, हो जाता है। बट जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं कर लेता हूँ टाइम पे। मेरा एक स्टूडेंट है सर मैं फॉर्म भरना ही भूल गया तो मेरा वो निकल गया एसएससी टेक मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब ये प्रोक्रेस्टिनेशन के जॉनर में कहाँ से आएगा? ये तो बंदा मतलब खत्म केस है। युद्ध में आने से ही बैटलफील्ड में आने से ही मना कर दिया। ये नहीं बट हाँ प्रोक्रेस्टिनेटिंग बिल जमा करना था 17 तक अब 17 आ गई जब मैसेज आया जैसे मेरे साथ भी होता है कि मोबाइल में मैसेज आने लगता है आज ही रिचार्ज इसको बिल को भरिए नहीं तो आपका कनेक्शन तब जाके बनता दैट्स ओके ट्रिवियल इश्यूज देन योर वीकनेसेस कैन बी कि I have some inhibitions like sometimes I may take more than required time to open up in a unknown gathering एक्सेप्ट कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं ये ट्रेनेबल है अभी क्या होगा धीरे 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 ऐसा वक्त आएगा जब आप खुल के बात कर सकते हैं पर खुल के क्या बोल रहे हैं वो जरूरी ये नहीं राहुल गांधी साहब की तरह आप जलेबी बेचने लगे तो खुल के बात करना एक एस्पेक्ट है और क्या बात करना ये दूसरा एस्पेक्ट है वो दूसरे ऑयल के में जाएगा तो इनहिबिशंस कैन बी but then it has to logically be explained to the interviewer ki why is this inhibition when do you feel it what did you do about it and then you will realize कि हाँ ये बच्चा जेन्युइन बोल रहा है ये उल्लू नहीं बना रहा है तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस और क्या वीकनेसेस हो सकती हैं आप मुझे अपने कमेंट में बताइएगा एक्सेप्टेबल है कि नहीं है देखिए आप सिंपल सा ये नजरिया समझिए कि साइकियाट्रिक डिसऑर्डर अगर वीकनेस है I am filled with revenge. I want to change this society. I want to make a revolution. अब आप धीरे धीरे कम्युनिस्ट की तरह बातें कर रहे हैं ये सब बीमारी वाली बातें ये सब ठीक नहीं कॉमरेड सोइंसो को लाल सलाम नहीं चलेगा फौज में नहीं चलेगा रशिया में भी नहीं चला तो ऐसी वीकनेसेस जिसपे आप कार्य कर सकें फिजिकल स्टैमिना कैन बी वन तो अब वो ये नहीं कि फिजिकल स्टैमिना है तो सर मेरा फिजिकल स्टैमिना ठीक नहीं तो आगे तो कहा किए फिजिकल स्टैमिना के लिए कुछ किए अगर आपने फिजिकल स्टैमिना को बिल्डअप करने के लिए स्टेप्स लिए सुबह उठना शुरू किया दौड़ना शुरू किया भागना शुरू किया जिम में गए ट्रेनिंग में गए ये किया वो किया धीरे धीरे बढ़ रहा है बढ़ जाएगा घुमाइए मत इंटरव्यूअर को सर कम्युनिकेशन ठीक नहीं है जीके ठीक नहीं है नहीं चलने वाला है नहीं ना चलेगा सो यू गॉट टू नो तो you got to know and know it well you got to connect with yourself है ना तो मेरे को बड़ी खूबसूरत कुछ पंक्तियां आज चूंकि दशहरा है और मुझे किसी ने भेजी थी तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको जाते जाते वो पंक्तियां सुना दूं मेरे दिल को छू गई तो मैंने कहा तो क्या कह रहा है कि मन हारा तो रावण है मन हारा तो रावण है मन जीता तो राम मन से अगर आप हार गए आपका मन अगर हार गया तो रावण है फिर मन जीत गया तो आप राम है मन ही मन में चल रहा देवासुर संग्राम आपके मन में देव भी हैं और असुर भी हैं आपके मन के अंदर ही है वो इंग्लिश साइकोलॉजी में भी है ब्लैक वुल्फ एंड व्हाइट वुल्फ तो आपके मन में ही है तो मन ही मन में चल रहा देवासुर संग्राम मन हारा तो रावण है मन जीता तो राम मन ही अंगद मन बजरंगी मन ही अंगद मन बजरंगी भगवान हनुमान भी जो हैं वो मन ही है मन की शक्ति अपार मन में हो यदि श्री राम तो
वानर भी कर जाएं लंका पार। मन में श्री राम है, पत्थरों पे श्री राम लिखा हुआ है, नल और नील पत्थर डाल रहे हैं पानी में, सेतु बन रहा है और वानर सेना कूच कर रही है लंका की ओर। तो मन में हो यदि श्री राम तो वानर भी कर जाएं लंका पार। दम भी मन के रावण का, दम भी मन के रावण का, दम भी मन के रावण का, जिस दिन होगा संहार। विजयदशमी का पर्व ये, उस दिन होगा साकार। आपके मन का जो रावण है उसको कीजिए संहार उसका। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एंड विश्वास को बनाए रखिए, होगा जरूर, समय लगेगा। कल ही मेरे एक स्टूडेंट तुषाल का मैसेज आया, बहुत अच्छा लगा, फोन आया कि सर हो गया, फिर से हो गया, टीजीसी में भी हो गया, अब एसएससी नेवी में भी हो गया। एक लड़का मुझसे पहले कुछ दिनों पहले जुड़ा था, यश, बहुत साइकोलॉजी उसका ऐसा गड़बड़ा गया था ना, कहीं कहीं ट्रेनिंग कर करके, पिक्चर देख ही नहीं रहा, ठप या ठोक दी पिक्चर पे स्टोरी, उसका भी हो गया। पॉसिबल है, इट्स ऑल पॉसिबल। ये आपको बोलना पड़ेगा अपने आप को, इट्स पॉसिबल, एंड देन इट विल स्टार्ट। तो ऑन दिस नोट माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।